कौन सा साइड है भाई? थैंक यू कास्ट कास्ट थैंक यू प्लानिंग नहीं करता। जो मुझे बहुत अच्छा लगता है या जो मुझे लगता है कि ये मैं करना चाहता हूँ और ये कहानी मैं लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो आई गो अहेड एंड डू इट एंड आई पुट मोर 2000% इनटू इट। तो वेदर वो कमर्शियल्स हो, कॉमेडी हो या एक्शन हो, और ये स्टोरी जब आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद मुकेश सर and such a legendary filmmaker, and I've had a prior relationship with T series as well. मैंने ब्लैकमेल उनके साथ बनाई थी। तो दो दोस्त थे इन अ वे, सीनियर, एक बहुत बड़े सीनियर और एक दोस्त। तो उनके साथ फिल्म बनाने का मौका मिलता है। और उसके बाद आप लोगों को शायद ये पता नहीं है कि दिव्या, भूषण और मैं, हम नेबर्स, ऑलमोस्ट 15 साल नेबर्स थे। तो और बिकॉज ऑफ दैट हमारे बीच में एक फिल्में बनाने से पहले हमारे बीच में एक ऐसे नेबर्स कहिए या तो एक फैमिली टाइप का रिलेशनशिप था। तो हम कोशिश कर रहे थे कि कभी ना कभी तो मौका मिलेगा एक फिल्म बनाने का जो हमें साथ में इंटरेस्टिंग कुछ बनाने को मिले, और वो शायद सावी के थ्रू हमें मिल गया। तो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। सी देखिए, the most compelling thing for any filmmaker to make a film is the story. A story which you share with your friends in a closed room. And if it creates a stir inside you and tells you a compelling thing of telling it to the larger audience outside, that is the film one should make. And Savvy is one film like that. It has a very powerful narrative. I can tell you one thing, each one of you, and I can vouch on that, when you see the film, this film will shock you. Shock you in a very nice way. There's nothing very disturbing and all, but it's a very elevating film. It's a very, very, very emotional film, and it has got tremendous amount of depth and the thriller excitement at the same time in it. And the whole making of it, when I went to Liverpool with Divya and Abhinay in -6 degrees, it was one of the most fascinating experiences I had, because shooting in -6 degrees is not funny. But honestly, because the narrative was so challenging and so compelling, we didn't feel the pressure of the weather hitting us. So I'm super excited about this narrative, and I'm very, very, very confident that this film, when you come out of this, you go with the expectation, which is, I'm sure, will not be that much, because it's not a so-called tentpole blockbusters syndrome kind of a film. But in terms of its narrative, it's got a big idea. It may not be a big film, but it's got a very big idea. And that's what works. And that's what is the strength and the USP of Vishesh Films. We always made big ideas, not big films. Because ultimately, big ideas work, and that's more important. Thank you. See, I have never really been a makeup person. मैं सिर्फ events के लिए makeup लगाती हूँ. Otherwise, अपनी normal life में I don't put a dot of makeup. So it was easy for me to go completely makeup free. makeup नहीं है मेरे चेहरे पर, और वही मेरे डायरेक्टर चाहते थे. बट डेफिनेटली मैं कॉस्ट्यूम्स ऐसे नहीं पहनती, और मुझे पता है कि मेरी जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है यहाँ प्रियंका बैठी है, उनके साथ बहुत डिस्कशंस होती थी, क्योंकि वो सिर्फ 2 पेयर ऑफ जीन्स लेकर आई थी जो मैंने पूरी पिक्चर में पहनी। 45 डेज ठंड में सिर्फ 2 पेयर ऑफ जीन्स, एक बदलो तो दूसरी पहनो और मैं कहती थी यार ऐसे कपड़े, मॉमी कपड़े क्यों दे रहे हो मुझे सो यू नो हु वेयर्स दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स, बट आई थिंक इवेंचुअली रिजल्ट स्क्रीन पे है, एंड द विजन ऑफ कोर्स बिलोंग्स टू आवर डायरेक्टर ओवर हियर who is so talented कि जैसा उन्होंने विजन देखा मुझे दिखाने का, आई एम लुकिंग
exactly like my character Savi, and I think that helped me also as an actor, because जब आप दिख रहे होते हो तो अंदर से you start feeling like that character automatically. Time for the questions from our friends here. Yes, the first question. Say that I got to know that Bhatt sir is making this film, and I went to meet him, and I requested him ki sir please cast me for this role. I want to do this role. And I think what he saw in me, he can only tell that he believed in me, and he gave me such a strong character to portray. And I'm so thankful and happy that now he stands proud of me. And it makes me very happy to see that, Let me talk for you. As you mentioned my name, that when this came to know about the script, which I had stumbled upon, and which had stirred me and excited me to make. You know what, Divya, if you ask me very honestly, what made me decide that yes, you and only you should play this role, is the sincerity and the honesty in which you came to me and pleaded with me that I would let me do this role. And I promise you, I will not let you down. That moment of sincerity completely swept me off my feet. And that is the most important thing. I knew that you will go that extra 100 miles to deliver what is expected out of this character of my film. And I want to tell each one of you, Divya Khosla is going to shock all of you with a brilliant performance. This is a film, I'm stating this openly, with confidence, she will shock you. A Divya Khosla you have never seen before. She is going to be in this film called Savvy. You will come out and say, oh my God, this girl can do a performance of this level? That's what Savvy is. So you must see the film, not because it's my film, because it's a film worth watching, and for the sincere, fabulous, 100% performance of Divya Khosla. सबसे ज्यादा क्या बात परेशान करती है जब हम अपने आसपास देखते हैं, क्या चीज है? मुझे ये लगता है कि अगर आप एक एम्बिशियस वुमन है तो वो होना ही बहुत गलत बात है आज की डेट में, क्योंकि आप पर बहुत तरह तरह के सवाल उठाए जाते हैं. आप एम्बिशियस है तो आपके हो सकता है रिलेशनशिप्स ठीक नहीं हो. आप एम्बिशियस है तो आप बहुत गलत कामों में इन्वॉल्व होकर अपना करियर आगे बढ़ा रहे हैं. आप एम्बिशियस है तो आप में कोई टैलेंट नहीं है. हमेशा ये क्वेश्चन मार्क लगाया होता है, और रीजन ये है कि आप एम्बिशियस है. तो एम्बिशियस होना क्या एक क्राइम है, क्या एक गलत बात है? अगर एक मर्द एम्बिशियस है तो उससे तो कोई नहीं पूछता, उससे तो सब लोग बढ़ावा देते हैं. इनफैक्ट इफ अ मैन इज नॉट वर्किंग तब उस पर उंगलियां उठती है कि ये कोई काम नहीं करता, ये घर बैठा रहता है. बट अगर इफ अ मैन इज एम्बिशियस इट्स अ वेरी गुड थिंग. बट इफ अ वुमन इज एम्बिशियस देन आई थिंक आजकल 21st सेंचुरी में भी लोग उसको ट्रोल करेंगे और उस बात के लिए पनिश करेंगे कि आप एक एम्बिशियस वुमन हो. बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल मैं आपके बात से सहमत हूँ. डायरेक्टर साहब, आपके लिए कैसा है एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट? हम हमेशा देखते हैं कि जो परिवार में है, अजय देवगन साहब या और शाहरुख खान साहब अपने परिवार के लिए आगे आते हैं और कहते हैं कि नहीं, मेरे लिए मेरा परिवार ही है, मैं उसको बिल्कुल बचाने के लिए कुछ भी कर जाऊंगा. लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि एक हीरोइन, एक नायिका कह रही है कि मैं किसी भी हद तक चली जाऊंगी. तो ये जो शिफ्ट है उसको वो आपके लिए, मतलब आप तो डायरेक्टर ही हैं, आप ही ने ही ये बनाई है, लेकिन इस एक हीरो से लेके ये जो हीरोइन वाला जो शिफ्ट है, ये आपके लिए कैसा, ये अनुभव आपके लिए कैसा रहा? पहली बात तो ये एक कारण था जिसकी वजह से मैंने ये फिल्म करनी चाहिए एक्चुअली, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि मेल सेंट्रिक तो बहुत सारी फिल्में ऑलमोस्ट मेल सेंट्रिक होती हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम. यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी थी कि 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से साथ आई. पहली बात कि ये कहानी एक ऐसे महिला की है जो बिल्कुल साधारण, उसमें कोई क्या कहते हैं कैपेबिलिटी का सवाल नहीं है, वो सिर्फ साधारण है क्योंकि उसको एक बच्चा है, अपने पति काम कर रहा है, वो खुश है अपने घर में. और ऐसी एक महिला जो आपको लगता हो कि क्या ही कर रही, मतलब ठीक है, शी इज लीडिंग अ नॉर्मल लाइफ, और जब उस पे बनाती है
जब उसकी परिवार पे बनाती है, जब उसके हस्बैंड को वो फंसाया जाता है, अब ऐसे चक्कर में वो किस हद तक जा सकती है उसे बचाने के लिए. एंड आई थिंक दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर मी. इट इज अ वुमन सेंट्रिक फिल्म. It is a film about a simple woman, and that is also one of the reasons why I'll go back to the previous question also, where I felt that Divya, the idea was, to me, there's one word that I feel sums it up, जो सब कुछ पूरा उसमें आ जाता है कि vulnerability, कि एक इतनी vulnerable सी एक औरत है जो बिल्कुल सिंपल सी लाइफ अपनी बसर कर रही है. उसकी एक्सपेक्टेशन भी बहुत कोई बड़ी नहीं है, लेकिन वो कुछ ऐसा बड़ा काम कर जाती है क्योंकि शी वांट्स टू हेल्प एंड मेक श्योर दैट द फैमिली इज सेफ. नाउ दैट इज व्हाट वाज द, जो मेरे लिए सबसे एक्साइटिंग चीज थी इस फिल्म के अंदर. एंड मेरे ख्याल से सिर्फ एक वुमन सेंट्रिक फिल्म के कोई वुमन कोई एक औरत है जो फाइट कर रही है, मारामारी कर रही है, ये वो, उससे ज्यादा एक जो डेप्थ होती है एक उनके अंदर, जो मेरा खुद का मानना है कि अ वुमन इज वे स्ट्रॉन्गर देन अ मैन इज, वे स्ट्रॉन्गर. मैंने अपनी माँ को देखा है. एक औरत में 1000 औरतें हो सकती हैं. बिल्कुल, क्यों 1000, क्यों ज्यादा भी हो सकती है. ध्यान में रखा होगा आपने, उस पर कुछ थोड़ा बहुत आप कहना चाहोगे? आई हैव सेकंड क्वेश्चन टू दिव्या. देखिए, म्यूजिक तो हाँ, मेरा स्ट्रेंथ है म्यूजिक का. अगर आप विशेष फिल्म का ट्रैक रिकॉर्ड देखें फॉर लास्ट 40 ईयर्स का, हमारी कोई फिल्म शायद चली ना हो मगर हमारा म्यूजिक हमेशा हिट रहा. दैट इज द कोर स्ट्रेंथ आई हैव विद माई म्यूजिक. मगर हर फिल्म लव स्टोरी नहीं होती है, या लव स्टोरी होती है बट उसका जो बेस है वो एक रोम कॉम का नहीं होता है, वो थ्रिलर का होता है. जैसे हमने बनाई थी 90s में सड़क, संजय दत्त और पूजा भट्ट के साथ. दैट वाज नॉट अ रोमांटिक फिल्म, इट वाज अ थ्रिलर, इट वाज अ डार्क फिल्म, और उसका म्यूजिक बहुत बड़ा हिट था. तो मर्डर हमने बनाई थी, मल्लिका शेरावत, इमरान हाशमी का, तो म्यूजिक ब्लॉकबस्टर था, तो इट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ थ्रिलर. इसमें म्यूजिक जब आता है बहुत रेलेवेंट टू द फिल्म है, एंड डेफिनेटली इट विल अपील टू यू, बिकॉज एक उसका इनहेरेंट स्ट्रेंथ हमारा म्यूजिक का हमेशा एक छाप होती है विशेष फिल्म का, एक तप्पा जिसका मुझे बहुत गर्व है, वो आपको नजर आएगा तो फिल्म देखोगे, एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट. और इसमें एक गाना हमने, दिस इज द लास्ट सॉन्ग ऑफ केके, यू नो, वो केके इज अ वेरी वेरी डियर friend of mine whom I have extremely fond memories of, and he sang one of the best songs for me, whether it was Jannat, Gangster, name all my films. He has given me the best of songs, and he sang the last song, and it happened to be for this night. And 1 week after he sang, he passed away. So this song is a tribute to that great friend of mine. I wish he was here. I miss him. And he will resonate the love and affection he's had for Mukesh Bhatt and for Vishesh Films through this song. When the song hits the screen, on the television and everywhere, you will know what I'm talking. It's a fabulous song, and KK, as always, is just mind-blowing. Conscious choice. I wanted to, of course, career-wise, you know, I'm very selective in the films I do. And जो भी मैं करूँगी उसमें मैं make sure करती हूँ कि मेरे करने के लिए बहुत कुछ हो, मैं उसमें कुछ दे पाऊँ, and of course कुछ नया हो, even for the audience कुछ नया हो. And here, you know, I would like to mention even my director Abhinay Deoji, the way he's shot the film, the way he's presented me, his clarity of vision, जो उन्होंने काम मुझसे निकलवाया है, I think all the credit goes to him. And you know, इतनी easily निकलवाया, like we were shooting like Bhatt sir ने कहा in -6 degrees, but never in that 45 day of schedule I felt physically drained or physically tired. इतने comfortably हमने set में काम किया, इतना अच्छा unit था. The production, Bhatt sir's production was so good, so well organized. We were made to stay very comfortably क्योंकि इतना hectic था पूरा schedule. But you know, my director made sure that
हम प्रॉपरली सेट पर टर्न अराउंड टाइम हमें मिल रहा है ताकि हम वेल रेस्टेड आ रहे हैं। ऐसे नहीं कि हम 30 घंटे शूट कर रहे हैं और 4 घंटे बाद फिर हमारा कॉल टाइम है, क्योंकि कई फिल्म्स में मैंने ऐसा भी काम किया है। तो यू नो ऑल दैट क्रेडिट गोज टू हिम, बिकॉज आर्टिस्ट जब फ्रेश आता है तो यू नो यू गिव fully, you are able to give more of yourself. So I think my director I'm really thankful to him, and I don't have no words, but you know the entire credit of this film that it's looking so international goes to him. Our DOP also, he's sitting here. Thank you sir. So thank you to our EP, everybody, the entire team of Savi. Because a lot of people make this mistake. It's not your fault. It's actually a slightly unusual name. But anyways, okay. Now coming to the question, to the answer. You know, I feel that हमारी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत कम ऐसे एक्टर्स हैं जो आपने अभी तक पिक्चर नहीं देखी है, लेकिन आप जब फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो रोल था वो इतना इंटरेस्टिंग रोल है. इट्स वन ऑफ द मोस्ट क्या कहते हैं फ्लैम्बॉयंट रोल इन द फिल्म. और उस ऐसे रोल को निभाने के लिए मेरे ख्याल से हम सारे जब हम बैठ के बात कर रहे थे, वी फेल्ट दैट अनिल वुड बी द बेस्ट ऑप्शन. आई हैव हैड अ हिस्ट्री विद हिम बिकॉज मैंने उनके साथ 24 करी है, 2 सीजन्स, तो ही इज लाइक फैमिली टू मी. तो इतना ईजी था टू अप्रोच हिम. And after that, I think it was very easy for him to say yes as well, because he also has had a relationship with Mukesh sir, with T-Series and with me. So I think it was a no-brainer for him as well. It's a very, very, very different role in which you will see Anil Kapoor in this one. But yeah, it was not a very difficult task for us to convince him, because first role ही वैसा है और दूसरा इतने सारे दोस्तों के साथ वो काम कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से दैट बिकेम अ वेरी इजी डिसीजन फॉर हिम. ही वाज सो इंस्पिरेशनल, यू नो, और इतना सिंसियरिटी के साथ उन्होंने काम किया. और उनका जो रोल है वो बहुत ही एक सरप्राइज पैकेज है फिल्म का. आप देख रहे होंगे हमने पूरा रिवील नहीं किया, उनको छुपा के रखा हुआ इस पूरी फिल्म में, बिकॉज ही इज द सरप्राइज पैकेज ऑफ द फिल्म. सो वो फिल्म आएगी तभी आपको रिवील होगा. बाकी भी डायरेक्टर से मैंने काम किया, मैंने अनुराग बासु से किया, मोहित सूरी से किया, विक्रम से, बहुत काम किया. मैं हमेशा अपनी क्रिएटिव टीम को बोलता हूँ, फिल्म मेकिंग इज अ क्रिएटिव एंटरप्राइज. When you talk about art, don't mess around with movies. Buy a Picasso; it's cheaper. You know, you have to work in an economic package. I'm here to entertain you, to give you a very strong narrative, but also I'm here to stay in business. My job is to manufacture glamour and not to become a victim of it. When we had done, I'd worked with him. 24 first season was in 2013, which is 11 साल पहले. एक बात आपको अनिल सर की बता दूं. 11 साल पहले, ओके, जब हम 24 शूट कर रहे थे, मेरे ख्याल से he after 11 years he's become 11 years younger. Because I'm not kidding, he looks the same. Okay, ये तो सब हम जानते हैं, लेकिन उस आदमी का मतलब, you know, the energy level, his zest to give a better shot. Okay, where director बोल रहा है सर मिल गया shot, he saying नहीं मैं मेरे लिए एक दिन. Okay, now this is impossible. This is, ये बहुत कम लोगों में ऐसा इतनी एनर्जी और इतना zest होता है to deliver something better and better. इस आदमी में वही है कि आई थिंक 11 साल के बाद में उनके साथ फिल्म करूंगा तभी भी वो वैसे ही दिखेंगे, और शायद ही विल बी इवन मोर एनर्जेटिक देन 24. दैट इज अनिल कपूर फॉर यू नो, ही इज इनक्रेडिबल. इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है, क्योंकि आई एग्री विद यू. मेरे ख्याल से हमारी इंडस्ट्री में, या यू नो, ज्यादातर राइटर्स की ज्यादा बात नहीं होती, हालांकि वहां से शुरुआत होती है. उगम हमारे सिनेमा का, जैसे मुकेश सर ने भी थोड़ी देर पहले कहा कि हम वी आर टेलिंग स्टोरीज. अब वो स्टोरी कौन लिखता है? वही तो लिखते हैं. ओके, एंड आई एग्री विद यू दैट राइटर्स का योगदान फिल्म बनने में सबसे ज्यादा होता है.
लेकिन वो शुरुआत में होता है, उसके बाद हम लोग सब आके उसको टेक ओवर कर लेते हैं, एक्टर्स, डायरेक्टर्स एंड बाकी के टेक्नीशियंस, तो वो थोड़े से पीछे रह जाते हैं शायद, लेकिन वो पीछे रहने चाहिए नहीं, बिल्कुल। इस फिल्म को लिखा है परवेश शेख। आई थिंक हमारे डायरेक्टर ने भी बहुत ज़्यादा राइटिंग में ऐड ऑन करवाया है, तो डायरेक्टर का बहुत बड़ा इनपुट होता है राइटिंग में, क्योंकि बहुत इमोशनल, जब वो बोर्ड पर आए तो उन्होंने इतना स्क्रिप्ट को इतना इमोशनली स्ट्रॉन्ग बना दिया, जो कि स्क्रिप्ट यहाँ से यहाँ पहुँच गई। सो आई थिंक डायरेक्टर का बहुत बड़ा योगदान था, विच आई टोल्ड हिम ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। नहीं, सो इट्स अ टीम एफर्ट। सी क्या होता है ना, फिल्म कभी एक आदमी नहीं बना सकता, लेकिन एक पूरा टीम, एक पूरी टीम उस पर काम करती है, जहाँ से शुरुआत होती है राइटर्स से और प्रोड्यूसर से ऑफ कोर्स, और वहाँ से लेकर एंड तक, जहाँ तक हम प्रोडक्ट देखते हैं। अभी 7 दिनों में आपको फिल्म दिखाई देगी, 8 दिनों में, तो वो जो पूरी प्रोसेस है, वो प्रोसेस राइटर्स से शुरू होकर ब्रॉडकास्टर्स तक, मतलब थिएटर्स तक, यू नो, इतने क्लोज टू 250 people, 300 people are involved, and I think we must take this opportunity to applaud all those technicians जिसके बारे में हम शायद कभी बात नहीं करते. So very good, thank you very much for this question.